colleagues, and follow space affiliation. Today, we come together for to commemorate the significant milestone, the first National Space Day in India. It is remembered for the Chandrayaan 3 mission successfully launched on that date last year. The August 23rd heralds a new era in our nation's exploring the of universe, a day side of a side celebration to outstanding. Please mute everyone, otherwise. Uh, Outstanding accomplishment of our space program and to inspire future endeavor in the space explorations. So India journey is a space as a remarkable from the launch of our inaugural satellite Aryabhat to the groundbreaking Mars orbitals Aditya L1. Our progress exemplifies for enhance the innovations and significance brilliance. Are privileged to build upon the legacy of pioneers of scientists, engineers, and visionaries whose relentless dedication has positions to India as a leader in the global space exploration. So that is the our formal introduction to I have welcomed to on this day. So our IAPT and Department of Physics, Saurashtra University jointly organized the today's event. So the schedule of the event is just like Professor uh, Vinod Kumar sir, IAPT President, welcomes you and give the inaugural address. After one, presidential address by Professor Kamal Singh Dodia, sir, Honorable Vice Chancellor of Saurashtra University, and keynote address. Otherwise, we can say the invited speaker by the Dr. Vishal sir afterward up to end of the topic, and last question answering and vote of thanks. So this is the schedule of this day. So I hope it is good for today for 1 hour, more than one hour and more than 1 hour. Okay, that is okay, sir. Now I will give to mic to Professor P.C. Vinod Kumar sir for the welcoming of our Honorable VC and Vishal sirs. The short introductions and Okay. Okay, thank you, Puneet. It's a great moment to be here to find the honorable speaker Vishal Joshi's talk. He is no more a very unknown person in Gujarat. All over India, he is giving talks, and then it is a great moment for all of us, particularly the IEPT RC07, that on a last moment telephonic talk, he has agreed and then provided a rightful time moment on this particular day. I welcome you, Vishal, and we all hope, in fact, all the participants of this seminar, this event, will be looking forward for many things from you, particularly the way we have came across the difficulties and the forthcoming challenges in space science that we are going to have. At this moment, it is also a great moment for us to see that the Vice Chancellor is present on this event. I welcome you, sir, Dr. Kamal Singh Dodia. He is not basically from physics or mathematics background. He is an conventional doctor, and he has shown much interest in arranging this particular event. For this purpose, again, I welcome you and thank you very much for organizing this and providing all the facilities, extending all the facilities of Saurashtra University for this event. Thank you, sir. Thank you very much. In fact, such days are organized or celebrated. It's a celebration, in fact, celebrated to encourage the young students towards the future scientific research as well as challenges that we are going to have. I hope the learned speaker will be projecting some of the challenges that we are going to have within a very short period of time. You already know that William is already trapped in the space station there. There must be a way out, by all the space science organizations of the world, to how we can provide or bring them back to this safe on Earth. With this,
small introduction without taking much time of your speaker and the listeners. I welcome all the participants of this who have joined or who are going to hear over a screen. It can be projected in a class and will be also be possible to larger attendance in a classrooms. With this, I welcome you all, particularly Vishal Joshi as well as the Vice Chancellor of this event, who is president of this function. Thank you very much. Thank you very much, sir, for a good introductory address for this event. Now, I would like to request the Professor and Dr. Kamal C. Dodias and Honorable Vice Chancellor for the presidential address. Because, okay, thank you. Over to sir. Hello, respected Professor P.C. Vinod Kumar, विशाल भाई जोशी, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि विशाल भाई वो हमारी यूनिवर्सिटी से एल्यूमिनी है, तो मुझे ये बात भी अच्छी लगी। बेसिकली मैं एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ और ऑप्थेल्मोलॉजी में प्रोफेसर हूँ यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में। पर इस इवेंट की बात जब मुझे सुनी तो मुझे ऐसा लगा, निकेश भाई से बात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसमें आना ही है, और मैं बहुत कंफर्ट फील कर रहा हूँ। ये सब फिजिक्स के रिसर्चर और फिजिक्स के लवर के बीच बैठ के मुझे वो ये दिन का इम्पोर्टेंस जो आपने स्पेस डे मनाने का शुरू किया है, तो जब मुझे लगता था कि जब मैं 12th में था, 11th में था, तो मुझे फिजिक्स में पहली बार तब इंटरेस्ट पड़ा जब मुझे ये सोचने का मौका मिला। मेरे टीचर्स ने मुझे ये बताया कि फुटबॉल के जब बॉल को हम किक लगाते हैं तो ऐसे ही क्यों घूमता है, सोचा है कभी? और तब वो फॉर्मूलाज उसने मुझे बताई और मैंने जब सुना तब से मुझे लगा कि फिजिक्स क्या है, उसका क्वेश्चंस मुझे इंटरेस्ट आने लगा। फिर दूसरी बात आई कि जब एक गाड़ी रेजिस्टेंस के बारे में, जब एक गाड़ी को बंद कर देते तो वो कितनी देर तक चलेगी, और जो एप्लीकेशंस मैंने उसमें भी फॉर्मूला जब मैंने पढ़ा, ये आप लोगों के लिए बहुत सहज होगा क्योंकि आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो गए हो, पर एक नए बच्चे को फिजिक्स में इंटरेस्ट में लाने के लिए जब वो टीचर ने ये बताया, तब से मुझे फिजिक्स, इवन दो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी और बाद में सब लाइफ साइंस वाले और मेडिकल में भी गया, 10 साल उसमें ही पढ़ा, पर मुझे फिजिक्स का इंटरेस्ट बरकरार रहा। और जब बॉडी के फिजिक्स में जब मैं डीप जाने लगा तो मुझे लगा कि ये फिजिक्स में जब एमएस कंप्लीट कर लिया मैंने, तो मुझे सोचा कि ये गवर्नमेंट स्पेस के लिए इतना खर्च क्यों कर रही है, हालांकि बॉडी के लिए, डिसीज के लिए इतना खर्च की जरूरत है, इतना डिसीज बाकी है। तब जब मैंने उसमें पढ़ना शुरू हुआ तो मुझे लगा कि जितना बॉडी के लिए खर्च करते हैं उतना ही स्पेस के लिए खर्च बहुत जरूरी है। विदाउट थिंकिंग अबाउट ओनली थिंकिंग अबाउट द एक्सपेंस फॉर द स्पेस, वी कैन नॉट ट्रीट द बॉडी। तो जब उसमें मैं आगे पढ़ने लगा और शौक भी आने लगा, तो मुझे लगा कि जैसे ये सब रोटेशन होता है, पृथ्वी का होता है, चंद्र का होता है, तो मुझे ऐसा लगा कि जब ब्लड रोटेट करता है हार्ट के बीच में, तो वो भी इस तरह से कुछ रिलेशंस होता होगा। और जब उसमें डिटेल गया तो मुझे पता चला, जैसे वेरियस सैटेलाइट है, जैसे सैटर्न है, क्या बोलते हैं, गुरु है, मंगल है, जब उसमें लगा तो मुझे वो भी पता लगने लगा कि जैसे अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड है, वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे थायराइड है, अपनी एड्रेनलिन ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसी हिसाब से उस तरह से ही, आई एम नॉट अबाउट वो दूसरा कुछ बात कर रहा हूं, पर मुझे पूरा पता है कि कौन सी ग्लैंड कौन से टाइम पे एक्टिवेट होती है और उसके जो केमिकल रिलीज होते हैं, वो होता है, वो बॉडी में क्या इफेक्ट करता है। तो मुझे इतना वो सब फिजिक्स के लिए कि अगर फिजिक्स का हमने नहीं पढ़ा तो हम बॉडी को समझ नहीं सकेंगे, और फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी, ये स्पेस, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट
बन गया। तो इस सब के बीच फिर हमारे पढ़ा में भी आने लगा कि ये अपना अर्थ रोटेशन करता है 24 आवर्स के लिए। तो वो साइकोलॉजी के कौन से ड्युअलिटी में, जैसे हमें पसंद नापसंद, अच्छा लगा बुरा लगा, वो सब दिन और रात के हिसाब से उसके साथ जुड़ा हुआ चीज होती है। और जब ये अपनी अर्थ है वो बनाते हैं सन के बारे में, रोटेशन लेता है, तो उसमें जब मौसम बनता है तो वो अपनी टेंडेंसी को वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं स्पेस के बारे में बहुत पढूं, पर इतना टाइम नहीं रहता। पर आप लोग जो ये कर रहे हो, और इसमें से पता नहीं कब उसका इफेक्ट आएगा, पर इसमें से बहुत सारे बच्चे को ये सब इंटरेस्ट जागने लगेगा। और ये सब आप लोग इतने फिजिक्स के एक्सपर्ट होके आप उसी तरह से ह्यूमैनिटी की भी सेवा करते रहेंगे। मुझे ज्यादा कहना नहीं है, पर आप लोगों को बीच मुझे आना ही था, इसलिए मैंने यहाँ आके अपनी बात रखी। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, very much for the inspirational speech and going. और हमें जान के भी ये खुशी हुई कि आप फिजिक्स में इंटरेस्ट भी रखते हैं, बात हमारे लिए भी बहुत बड़ी है। थैंक यू फॉर दैट, सर। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, I will give the platform to Dr. Vishal Joshi, sir, for the present talk. He's delivered talk on the physics of satellites of orbits. So over to Vishal, sir. Thank you. विशाल सर, मैं जा रहा हूँ तो दूसरा एक कार्यक्रम है। Okay, thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Am I audible? Yes. Yeah. Okay. So first of all, I take this opportunity to thank IIPT RC7 to provide me an opportunity to interact with vast audience in across Gujarat, and maybe some of them I know are from other part of India too. Just 2-3 दिन पहले IIPT RC7 का जो गुजरात लेवल का व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें एक डिस्कशन शुरू हुआ जो बेसिकली एस्केप वेलोसिटी के अराउंड थोड़ा घूम रहा था। मैंने 1-2 क्वेश्चन पोज किए, एंड देन हमारे आदरणीय वडील जोशीपुरा साहब, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप इस पे क्यों एक टॉक नहीं देते हैं, एक लेक्चर नहीं देते हैं। मैं जस्ट डे बिफोर यस्टरडे इवनिंग मैंने कंफर्म किया, और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कोई बढ़िया अपीलिंग इंटरेक्टिव कोई प्रेजेंटेशन में बनाऊं। बट एट द सेम टाइम मैं कई बार समझता हूं कि जो इंट्यूटिव कंसेप्ट्स, क्लैरिटी जो फिजिक्स में बहुत जरूरी होती है, उसमें प्रेजेंटेशन काफी हेल्प करता है, बट वो होना जरूरी नहीं है। तो आज का टॉक मैंने जो रखा है वो रादर टॉक और लेक्चर, इट यू कैन कंसिडर एज अ डिस्कशन। हम कुछ 1-2 क्वेश्चंस से स्टार्ट करेंगे और उसके ऊपर थोड़ा मनोमंथन करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं अपने तरीके से मैं उसको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा, एंड देन इन द एंड ऑफ द टॉक वी विल ट्राई टू कन्वर्ज द आंसर, द पॉसिबल वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस problems. I'll try to converge to in a common scenario. तो अगर हम सैटेलाइट ऑर्बिट्स की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि उसमें जो प्राइमरी फोर्स है वो ग्रेविटेशन है। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग ग्रेविटेशन इटसेल्फ, और अदर हैविंग द इम्पैक्ट, ग्रेविटेशन की क्या इम्पैक्ट रहती है वो समझे बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो वहां से मैं पहले शुरू करता हूं। तो एक जो कॉमन मिसकंसेप्शन है काफी सारे स्टूडेंट्स में, जितने भी स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करता हूं, कई बार मैं ऐसे, मेरे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो मैं उनको पूछता हूं, और उसमें से एक क्वेश्चन ये है कि कोई रॉकेट को स्पेस में जाने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए। रॉकेट जब लॉन्च होता है, टेक ऑफ होता है, तो वो कितनी वेलोसिटी उसको चाहिए। और सभी बच्चों का जनरली मैंने देखा है, इन जनरली सॉरी
तो ये कॉमन एक आंसर रहता है कि सर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि दैट इज एन एस्केप वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी मिलने के बाद ही कोई भी रॉकेट स्पेस में पहुंच सकता है। मैं फिर थोड़ा उसको और आगे पुश करता हूं, क्यों ऐसा, कि एस्केप वेलोसिटी क्या है। तो अगेन आंसर मिलता है कि एस्केप वेलोसिटी है अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर जाने के लिए जो वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है उसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। अब ये अब सोचेंगे आप में से काफी सारे लोग फिजिक्स में एक्सपर्ट हैं और वो सब जानते हैं कि यहाँ पे काफी सारे मिसकंसेप्शन इन्वॉल्व हैं। एट द सेम टाइम मुझे पता है कि हमारे बहुत सारा ऑडियंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या तो इवन अदर बैकग्राउंड से हैं, मुझे कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए, तो मैं ट्राई करूंगा ये डिस्कशन को ना ही टेक्निकल फिजिक्स में ही लिमिटेड रखते हुए एक जनरल इंट्यूटिव पिक्चर डेवलप करने की मैं ट्राई करूंगा। तो पहले हम समझते हैं कि ये स्पेस होता क्या है। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, let me try. I'm sharing my entire screen, but I'm unable to share. Oh, okay, now I am sharing. Yeah, now I'm able to share. Confirm if you can see my screen. मेरा एक blank screen है, मैंने paint open करके रखा है। Yes sir, it is visible. Thank you. तो पहले तो हम ये समझते हैं कि हम स्पेस बोलते हैं, स्पेस में जाना, स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च किया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स स्पेस में घूमते हैं, हबल स्पेस टेलीस्कोप या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस में घूम रहे हैं, सुनीता विलियम्स स्पेस में फंसी हुई है। ये स्पेस है क्या? तो अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन से देखें, सो देयर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड स्पेस। कोई ऐसा एक पर्टिकुलर लाइन, डिमार्केशन लाइन नहीं है कि जिसके नीचे एटमॉस्फेयर है और जिसके ऊपर स्पेस है, क्योंकि आप जैसा ही एटमॉस्फेयर में ऊपर 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 जाते हैं वैसे डेंसिटी, प्रेशर कम होता जाता है एटमॉस्फेयर का, एंड इवेंचुअली इट विल सबमर्ज इन द आउटर स्पेस। स्पेस के बारे में एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि वहां पे कंप्लीट वैक्यूम है। स्पेस, जिसको हम स्पेस एक्चुअली बोलते हैं, वो स्पेस में सही में इतना वैक्यूम है कि जो अर्थ पे हम बेस्ट पॉसिबल वैक्यूम बनाते हैं उससे हजारों लाखों गुना बढ़िया वैक्यूम है। एक्चुअल इंटरस्टेलर मीडियम, स्पेस में जितना वैक्यूम है वो लेवल का वैक्यूम हम अभी तक अर्थ पे बना ही नहीं पाए हैं। बट एट द सेम टाइम आई मस्ट पुट अ करेक्शन कि स्पेस में कंप्लीट वैक्यूम नहीं है। स्पेस के अंदर कंप्लीट वैक्यूम नहीं होता है, वहां पे भी every cubic centimeter या every cubic meter में you will always find few to few tens of, to few thousands of, to few millions of ions, atoms, molecules, electrons, anything, है ना। तो स्पेस में भी कंप्लीट वैक्यूम नहीं होता है, हालांकि वो वैक्यूम इतना बढ़िया वैक्यूम होता है कि जो अर्थ में हमारे प्रोड्यूस किए हुए बेस्ट पॉसिबल वैक्यूम से भी काफी काफी ज्यादा वैक्यूम है। तो आगे बढ़ते हैं। सपोज मैं स्पेस की डेफिनेशन प्लान करूं, मान लो मैंने ये एक अर्थ ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैंने एक अर्थ ड्रॉ किया है। तो स्पेस कहाँ से चालू होता है? तो हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी में जो एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है वो बोलती है कि जब आप 100 to 120 किलोमीटर की हाइट गेन करते हैं सरफेस से, सी लेवल से 100 to 120 किलोमीटर की हाइट गेन करते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि अब मैं स्पेस में एंटर हुआ। सो बेसिकली स्पेस स्टार्ट्स फ्रॉम 100 to 120 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल। अब 100 to 120 किलोमीटर कितना है? आप देखिए अर्थ की जो रेडियस है वो अराउंड 6370 किलोमीटर है। तो अगर आप 120 किलोमीटर की भी लिमिट लेते हैं, सो दैट इज barely 2% ऑफ द अर्थ रेडियाई। तो आप सोचिए कि मैंने यहाँ पे ये जो मैं रेड कलर से जो लाइन बना रहा हूं ना, दैट लाइन इज ऑल्सो नॉट प्रॉपरली रिप्रेजेंटिंग दिस 120 किलोमीटर। एक्चुअली आप बोल सकते हैं कि ये जो मेरी लाइन की थिकनेस है ना, वो थिकनेस जितना ही अपना एटमॉस्फेयर है और उसके ऊपर स्पेस चालू हो जाता है। सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि एटमॉस्फेयर हमें बहुत थिक लगता है
स्पेस हमें बहुत दूर लगता है, बट अब जब आप पूरे अर्थ के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एटमॉस्फेयर की थिकनेस बैरली अर्थ के रेडियस से 2% जितनी है। ब्लैक बोर्ड पे अगर मैं 1 मीटर डायामीटर का एक सर्कल ड्रॉ करूं और उसको मैं अर्थ बोलूं, तो वहां एटमॉस्फेयर बैरली 1 सेंटीमीटर हाइट से शुरू हो जाएगा। 1 मीटर डायामीटर के अर्थ के लिए वो बैरली 1 सेंटीमीटर से स्पेस चालू हो जाएगा। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। स्पेस, we can say we entered in space when we crossed this 100-120 kilometer region. Okay. अब दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या स्पेस में जाने के लिए मुझे एस्केप वेलोसिटी की जरूरत होती है? तो सही आंसर है नहीं। सी, हम ऐसे समझते हैं, सपोज मेरे हाथ में एक पत्थर है, मैं और उसको उछालता हूं। मैं उछालूंगा तो वो पत्थर एक हाइट तक जाएगा और वहां से वो वापस आएगा। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, हम सब जानते हैं कि वहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और वहां से वो रिटर्न आएगा, उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी और फिर वो मुझ तक पहुंचेगा। अगर मैं एटमॉस्फेरिक ड्रैग फोर्स, एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को मैं इग्नोर कर दूं, तो फिर मैं कैलकुलेट कर सकता हूं या मैं मान सकता हूं कि जो इनिशियल वेलोसिटी से मैंने पत्थर फेंका था, पत्थर ऊपर जाके वापस जब नीचे मेरे हाथ में आएगा तो एग्जैक्ट वही वेलोसिटी बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। वेलोसिटी का वैल्यू, उसका एम्पलीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। ओके, तो अब जब मैं बोलता हूं कि मुझे कोई सैटेलाइट को स्पेस में भेजना है, तो मुझे उसको एस्केप वेलोसिटी देने की जरूरत है क्या? तो पहले हम ये समझते हैं कि एस्केप वेलोसिटी है क्या। अगेन, एस्केप वेलोसिटी में एक मिसकंसेप्शन है कि अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर जाने के लिए। अब आप सोचेंगे अर्थ का ग्रेविटेशन के बाहर क्या? अर्थ का ग्रेविटेशन कहां तक होता है? अर्थ के ग्रेविटेशन की लिमिट क्या होती है? सो देयर इज नो लिमिट। अगर आप न्यूटन का ही जो फॉर्मूला, फेमस फॉर्मूला हम जानते हैं, F is equals to Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। कहां से मैं इसकी थिकनेस बढ़ा सकता हूं? F is equals to, I believe you people can read what I am typing here. Give me a minute. Gmm अपॉन r स्क्वायर। यहां पे देखेंगे G, M and M are always positive, right? R is a distance between two bodies. अब आप अर्थ से कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को जितना भी दूर ले जाएंगे, R बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जो भी R की वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपको एक फोर्स मिलेगा। R जितना ज्यादा होगा, फोर्स उतना कम होगा। बट द क्वेश्चन इज कि R की कोई लिमिट नहीं होती, वो तो इनफाइनाइट तक जाता ही रहता है, इनफाइनाइट की लिमिट तक पहुंचता ही रहता है। सो देयर इज नो बाउंड्री। आप यूनिवर्स के एंड पे भी पहुंचेंगे और वहां से भी अर्थ का डिस्टेंस निकाल के आप F कैलकुलेट करेंगे तो यू विल फाइंड सम फोर्स। सो इन दैट केस देयर इज नो बाउंड्री ऑफ ग्रेविटेशन। सो हाउ कैन वी एक्सप्लेन द एस्केप वेलोसिटी? सो बेसिकली द एस्केप वेलोसिटी हम इंट्यूटिवली ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही जो पत्थर का एग्जांपल बताया है कि एक पत्थर में उछाल रहा हूं, वो एक हाइट पे जाएगा, 0 वेलोसिटी होगी उसकी और फिर वो रिटर्न आएगा। क्यों उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है? इनिशियली वो एक वेलोसिटी से राइज हो रहा है, बट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वर्क्स ऑन दैट स्टोन, और वो जो स्टोन है उसकी वेलोसिटी ग्रेविटेशनल फोर्स की अंडर में कम होती जाएगी और कम होती 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 इवेंचुअली वो 0 होगी। अगर मैं पत्थर को ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी से फेंकूंगा तो वो और ऊपर जाएगा और वहां जाके उसकी वेलोसिटी 0 होगी। अगर मैं पत्थर को बहुत ज्यादा वेलोसिटी से फेंकता हूं तो पत्थर ऊपर जाएगा। पत्थर इतना ऊपर जाएगा, आप मान लेते हैं कि फ्यू किलोमीटर या फ्यू टेंस ऑफ किलोमीटर या फ्यू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ऊपर जाता है, डिपेंड्स ऑन माय इनिशियल वेलोसिटी, वो उतना ऊपर जा सकता है। जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा बेसिकली वो अर्थ के ग्रेविटेशन से, अर्थ के सेंटर से दूर जाएगा। अर्थ के सेंटर से दूर जाएगा
तो हमारे ये आर भाई साहब है, डिस्टेंस है, वो बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ेगा, दैट मीन्स कि नाउ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स विल ऑल्सो रिड्यूस। पत्थर जैसे जैसे अर्थ से दूर जा रहा है वैसे वैसे अर्थ का ग्रेविटेशन भी कम हो रहा है। अब पत्थर के उछलने के केस में हम वो ग्रेविटेशन का रिडक्शन निग्लिजिबल मान सकते हैं, क्योंकि वो फ्यू टेंस ऑफ मीटर की हाइट पे जाता है। बट व्हेन वी आर एक्चुअली trying to reach in space few hundreds of kilometer और farther, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अर्थ से आप जैसे जैसे किलोमीटर्स में या उससे भी ज्यादा स्केल में आप दूर जाएंगे तो ग्रेविटेशन कैसे कम होगा। जब ग्रेविटेशन कम होगा तो वो हाइट पे पहुंचे हुए पत्थर की वेलोसिटी का रिडक्शन भी कम होगा, उसके ऊपर एक्सेलरेशन डिसेलरेशन कम लगेगा। तो पत्थर में जो वेलोसिटी का रिडक्शन हो रहा था वो अब कम रेट से होगा। अब यहां पे हम ये पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्या पत्थर को मैं कोई ऐसी वेलोसिटी से मैं फेंक सकता हूं कि पत्थर के ऊपर, पत्थर जैसे जैसे ऊपर जाएगा अर्थ से दूर जाएगा वैसे वैसे उसके ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशन तो लगेगा, बट एट एनी पॉइंट इन द स्पेस वो पत्थर की काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी नथिंग बट यू कैन से द एबिलिटी ऑफ अर्थ टू पुल इट बैक। तो कोई भी पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो फाइट चल रही है उसमें काइनेटिक एनर्जी हमेशा विनिंग पोजीशन में रहेगी। यानी कि स्पेस में कोई भी पॉइंट पे पत्थर के पास इतनी सफिशिएंट वेलोसिटी होगी कि वो पॉइंट पे लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर पाए। अब जैसे जैसे दूर जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होता जाएगा, वेलोसिटी भी चेंज होती जाएगी। तो बेसिकली आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही चेंज हो रही है। एट एनी पॉइंट इफ काइनेटिक एनर्जी इज सफिशिएंट टू ओवरकम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इन दैट केस वो पत्थर कितना भी दूर जाएगा अर्थ उसको वापस खींच नहीं पाएगी। जितना भी जो दूर जाएगा वहां पे अर्थ का ग्रेविटेशन लग तो रहा है, बट अब वो इतना कम हो गया है कि वो पॉइंट पे पत्थर की वेलोसिटी को जीरो नहीं कर पा रहा है। सो पत्थर इन दैट कंडीशन, जो भी हमारा उछाला हुआ पत्थर है वो इवन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन वो दूर 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 जाता ही जाएगा और कभी भी वो रिटर्न जर्नी नहीं करेगा। सो इन दैट केस वी कैन से कि हमारा उछाला हुआ पत्थर, अगर मैंने कोई एक स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी देके वो पत्थर उछाला है, काइनेटिक एनर्जी यानी स्पेसिफिक वेलोसिटी, अगर मैंने वो पत्थर को कोई स्पेसिफिक वेलोसिटी से उछाला है अर्थ की सरफेस से, तो वो पत्थर की फाइनल वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होगी और इन दैट केस वो पत्थर कभी भी अर्थ पे आएगा नहीं। सो इन दैट केस वी कैन से कि वो पत्थर अर्थ के ग्रेविटेशन से एस्केप होगा। एक्चुअली ग्रेविटेशन से एस्केप होने की बात ही नहीं है, बट उसका मतलब हम ये बता रहे हैं कि वो पत्थर के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम होगी कि वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा ही रहेगी। And that specific velocity is 11.2 kilometer per second on Earth surface. On Earth surface. यहां पे कुछ चीजें क्लियर करनी जरूरी है कि ये जो भी स्पेसिफिक वेलोसिटी है, जो भी एस्केप वेलोसिटी है, वो एस्केप वेलोसिटी कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए अर्थ के लिए भी एस्केप वेलोसिटी अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है। अर्थ की सरफेस पे जो एस्केप वेलोसिटी है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, बट अगर आप सरफेस से ऊपर जाएंगे तो एस्केप वेलोसिटी जितना आप ऊपर जाएंगे धीरे धीरे कम होती जाएगी। इन द अदर सिनारियो, मान लेते हैं मैं अर्थ को श्रिंक कर देता हूं, अर्थ का मास सेम रखता हूं बट उसकी साइज को श्रिंक करके उसकी साइज को मैं कम कर देता हूं, यानी कि अब जो अर्थ की सरफेस है वो अब सेंटर से और नजदीक चली गई है, तो वो नई वाली इमेजिनरी सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होगी।
और एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हमारे पास है ही √2gm/r, वहां से हम उसको इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। So basically escape velocity depends upon two factors. एक तो mass of the object, in our case it is earth, and the second is the distance from the center. ये दो चीजों पे डिपेंड है। If this concept is clear कि escape velocity यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकना कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन के मुकाबले वो हमेशा उसके पास ज्यादा एनर्जी रहेगी, तो उसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। अभी हम फिर से हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कोई भी सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए उसको एस्केप वेलोसिटी देने की जरूरत है कि नहीं? तो इसका जवाब है ना, और ये ना जवाब के मल्टीफोल्ड आंसर हैं। मैं एक के बाद एक लेयर डिस्कस करता जाता हूं। पहला तो पॉइंट ये है कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो तो कोई भी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक पहुंचाने की बात है। मैं अगर कोई सैटेलाइट को स्पेस में भेज रहा हूं तो मैं उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस भेजने की जरूरत ही नहीं है मुझे। मेरा स्पेस चालू हो जाता है 100-120 किलोमीटर पे। टिपिकली जो लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट बोलते हैं, जिसमें आप हबल स्पेस टेलीस्कोप भी काउंट कर सकते हैं, जिसमें आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी काउंट कर सकते हैं, जिसमें आप बहुत सारे मोस्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को भी काउंट कर सकते हैं। ये सारे सैटेलाइट LEO दैट इज लोअर अर्थ ऑर्बिट, लियो ऑर्बिट में, लियो में घूमते हैं। सो ये जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट है, वो लो अर्थ ऑर्बिट में ये हमेशा मूव करते हैं। एंड इन दैट केस आई डोंट नो मैं ये ब्रश की थिकनेस कैसे बढ़ा सकता हूं, बट कैन यू रीड व्हाट आई एम राइटिंग हियर? प्लीज कंफर्म, अदरवाइज आई विल वर्क लिटिल मोर। Yes, sir. Yes, you can read it, right? Good. Yes, sir. तो Yes, ये sir. लो अर्थ ऑर्बिट है, उसकी रेंज है 400 to 600 किलोमीटर, टिपिकल 400 to 600 किलोमीटर। यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहां पे सुनीता विलियम्स अभी फंसे हुए हैं, वो भी ऑलमोस्ट ये रेंज में ही कहीं पे एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम रहा है। अब आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत आसानी से 3 लाइन कैलकुलेशन से आप बता पाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को ये लो अर्थ ऑर्बिट यानी 400 to 600 किलोमीटर की ऑर्बिट में भेजने के लिए आपको एस्केप वेलोसिटी की जरूरत नहीं है। मान लो मेरे हाथ में एक पत्थर ही है और वो पत्थर को ही मुझे लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है, तो लो अर्थ, पहले मैं स्टार्ट करता हूं एक्चुअल स्पेस में भेजने की बात से। तो अगर मुझे वो पत्थर को 120 किलोमीटर की हाइट पे भेजना है, 130 किलोमीटर की हाइट पे भेजना है, तो जस्ट 1.6 किलोमीटर पर सेकंड की एनर्जी सफिशिएंट है। तो अगर मैं थोड़ा लिस्ट आउट करूं तो अगर 120 to 130 किलोमीटर की हाइट पे पहुंचाने के लिए जस्ट 1.6 किलोमीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी सफिशिएंट है। मैं जस्ट 1.6 किलोमीटर पर सेकंड बोल रहा हूं, बट दैट इज नॉट जस्ट नंबर, क्योंकि वो नंबर भी काफी बड़ा है। यू कैन कैलकुलेट कि उसकी जो वैल्यू है वो 50,000 किलोमीटर पर आवर जैसी हो जाएगी, समथिंग लाइक नहीं 5,000 किलोमीटर पर आवर जितनी स्पीड हो जाएगी, जो सही में काफी बड़ी है। हमारे फाइटर प्लेन्स भी इतनी स्पीड से नहीं जाते हैं। बट जस्ट टू ब्रिंग आउट दिस नंबर्स, ये है 120 to 130 किलोमीटर की हाइट अचीव करने के लिए। अगर आप 400 to 600 की किलोमीटर की हाइट अचीव करना चाहते हैं, इन दैट केस, excuse me, in that case you need velocity around 3.5 to 4 kilometer per second। जस्ट इतनी ही वेलोसिटी आपके पास होगी तो आप लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट को
जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में, यानी कि ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंचाना है, इन दैट केस यू नीड अबाउट 10 किलोमीटर पर सेकंड. You need about 10 kilometer per second. This number is close to our escape velocity, but not equal to escape velocity. है ना? तो यहां पे मैं पहले तो ये बता रहा हूं कि आपको एस्केप वेलोसिटी दे के ही स्पेस में पहुंच सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है. उससे काफी कम वेलोसिटी से भी आप स्पेस में पहुंच सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट कि स्पेस में पहुंचने के लिए इवन इतनी सारी वेलोसिटी की भी जरूरत नहीं है. आप देखिए ना, ये जो वेलोसिटी मैं बता रहा हूं, जैसे लो अर्थ ऑर्बिट की ही बात करते हैं, हमारा जो मोस्ट सेलिब्रेटेड, मोस्ट सक्सेसफुल रॉकेट है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इंडिया का, विच इज काउंटेड टू बी मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट इफेक्टिव रॉकेट इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रॉकेट इन द वर्ल्ड. हमने उसके 60 से भी ज्यादा लॉन्च किए हैं और बैरली 2-3 लॉन्च फेल हुए हैं. सो उसका जो सक्सेस रेशियो है मोर देन 90% है. तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रॉकेट PSLV. अगर उसके लॉन्च का आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि वो टेक ऑफ करने के बाद फ्यू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से वो लॉन्च हो रहा है ना. अगर आप देखेंगे कि मुझे उस लो अर्थ ऑर्बिट में जो PSLV रॉकेट लॉन्च करता है सैटेलाइट को, अगर उसकी वेलोसिटी 3.5 से 4 किलोमीटर होती, यानी 1 घंटे में वो ऑलमोस्ट 14,000 किलोमीटर पहुंच जाता. स्पेस में पहुंचने के लिए उसको कितने 4 है ना 30 सेकंड्स लगते, बट एक्चुअली वो इतना फास्ट जाता नहीं है. आप टेक ऑफ देखेंगे तो बहुत स्लोली रॉकेट टेक ऑफ होता है. दैट मीन्स कि रॉकेट टेक ऑफ, फॉरगेट एस्केप वेलोसिटी, बट इवन रिक्वायर्ड मिनिमम वेलोसिटी, जितनी भी वेलोसिटी रॉकेट के पास नहीं होती. तो अब यहां भी हमें यह समझना होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए मुझे 4 किलोमीटर की मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, तो मेरा रॉकेट क्यों वो वेलोसिटी से लॉन्च नहीं होता? तो उसका रीजन ये है कि जब मैं ये एस्केप वेलोसिटी या तो मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी में कैलकुलेट करता हूं, उस टाइम पे मैं जो भी फोर्स मेरे हाथ में रखे हुए पत्थर पे अप्लाई करता हूं, वो मोमेंटरी फोर्स होता है, इनिशियल फोर्स होता है. एक बार मैंने वो पत्थर को इनिशियल वेलोसिटी से फेंक दिया, उसके बाद पूरी ट्रेजेक्टरी के दौरान वो पत्थर पे कोई एक्सटर्नल फोर्स में लगाता नहीं हूं, अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटेशन, और कोई एक्सटर्नल फोर्स में अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता नहीं हूं. इन दैट सिनेरियो कि आपको जो भी फोर्स लगाना है शुरू में ही लगा दो, उसके बाद आप फोर्स नहीं लगा सकते हैं, वो कंडीशन में ये वेलोसिटी रिक्वायर्ड है. बट अगर आपके पास प्रोविजन है कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे आप उसके ऊपर एक फोर्स लगाते जाते हैं, इन दैट केस ये वेलोसिटी रिक्वायर्ड नहीं है. और वही सिनेरियो होता है हमारे रॉकेट के केस में, क्योंकि जो सैटेलाइट होता है, रॉकेट एक बार लॉन्च होता है, उसके अंदर सैटेलाइट होता है, रॉकेट एक बार लॉन्च होता है, फिर रॉकेट का इंजन तो चालू रहता है, टेंस ऑफ सेकंड्स से लेके फ्यू मिनट्स तक मिनिमम चालू होता है, उससे भी ज्यादा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम रॉकेट के इंजन को चालू रखते हैं. तो बेसिकली जो भी रॉकेट लॉन्च होता है वो इनिशियली लो वेलोसिटी से लॉन्च होता है और धीरे धीरे वो वेलोसिटी गेन करता जाता है. अपना रॉकेट है वो नीचे की तरफ हॉट गैस को रिलीज करता जाता है और उसकी रिएक्शन के तौर पे रॉकेट एक्सेलरेशन लेता जाता है और वो एक वेलोसिटी इंक्रीज करता जाता है. देन यू कैन सी कि जो रॉकेट स्लोली टेक ऑफ हुआ है वो धीरे धीरे वेलोसिटी गेन करके स्पेस में जाएगा. तो सिंस रॉकेट इंजन इज बर्निंग कंटिन्यूअसली and applying force, upward force continuously on the rocket body and eventually on the satellite, you do not need even these minimum velocities to reach in space. In fact,
अगर आप एक ऐसा, मुझे अगर स्पेस में पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है, तो मैं एक ऐसा रॉकेट भी बना सकता हूं जो आराम से 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली मेंटेन रखे, just 1 centimeter per second. That corresponds to a walking man speed, 4 kilometer per hour roughly. चलता हुआ इंसान है वो ऑन एन एवरेज 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। अगर मैं एक ऐसा रॉकेट बनाऊंगी जो ये वेलोसिटी को कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखे, तो ये स्लो वेलोसिटी से भी मैं स्पेस पे पहुंच पाऊंगा, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन जो मुझे पुल कर रहा है उसके अगेंस्ट में मेरा रॉकेट काम कर रहा है। तो पहला मेरा पॉइंट ये है कि स्पेस में पहुंचने के लिए आपको कोई वेरी हाई वेलोसिटी रिक्वायर्ड नहीं है। इन थ्योरी आप स्लो वेलोसिटी वाला रॉकेट भी बना के पहुंचा सकते हैं। हालांकि अगर हम सोचेंगे तो फिर हम इतना फास्ट क्यों चाहते हैं? रीजन टेक्निकल रीजन है, क्योंकि जब आप कोई भी रॉकेट लॉन्च करते हैं और उसको कंटिन्यूअसली बर्न करते हैं स्पेस तक पहुंचने की तक, तो आपको इतना फ्यूल भी साथ में ले जाना है जो रास्ते में बर्न हो। इनिशियल जो फ्यूल बर्न होता है उसको वो एक्स्ट्रा बर्डन भी स्पेस तक ले जाना होता है। तो आपका रॉकेट जितना बड़ा उतना उसका वेट ज्यादा और उतना ही उसकी इनिशियल थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट ज्यादा। और इसीलिए आप अगर याद करेंगे तो कोई भी रॉकेट होता है, कोई बड़ा रॉकेट होता है, चाहे वो सैटर्न 5 रॉकेट जिससे अपोलो 11 गया था नील आर्मस्ट्रांग को लेके, या तो हमारे GSLV या इवन PSLV रॉकेट, उसके साथ इनिशियली छोटे बूस्टर रॉकेट्स, थ्रस्टर्स या तो बूस्टर उसको बोलते हैं, वो रॉकेट उसके साथ अटैच होते हैं। मेन रॉकेट इंजन जिसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज के साथ साथ वो बूस्टर्स भी बर्न होते हैं और इनिशियल थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं पूरे रॉकेट की बॉडी को लिफ्ट अप करने के लिए। एक हाइट तक पहुंचने के बाद वो जो एक्स्ट्रा बूस्टर रॉकेट्स होते हैं उन्होंने अपना काम कर दिया होता है, अपना पूरा फ्यूल बर्न कर लिया होता है, और फिर वो डिटैच होके हम उसको गिरा देते हैं और फिर रॉकेट मेन बॉडी ही ऊपर जाता है। तो ये जो बूस्टर्स रॉकेट होता है उनका काम होता है इनिशियल बूस्ट प्रोवाइड करना रॉकेट को लॉन्च करने के लिए। उसके साथ भी आप देखेंगे कि रॉकेट के जो इंजन्स होते हैं उसको भी हम स्टेज में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, समटाइम्स स्टेज 4। क्यों हम स्टेज में डिवाइड करते हैं? क्योंकि अगर हम इंजन्स को स्टेज में डिवाइड करेंगे तो एक लेवल का फ्यूल बर्न हो गया, फिर उतना पार्ट यानी कि वो पर्टिकुलर स्टेज आप रॉकेट से रिमूव कर सकते हैं, और जैसे ही वो रॉकेट से रिमूव हुआ रॉकेट का मास कम हो गया। रॉकेट का मास कम हो गया यानी जो नेक्स्ट स्टेज है, स्टेज 2 या स्टेज 3, उसको कम फ्यूल रिक्वायर होगा रॉकेट को और एक्सेलरेट करने के लिए। तो वी आर नॉट ओनली अप्लाइंग कंटिन्यूअस थ्रस्ट बट ऑल्सो कंटिन्यूअसली रिड्यूसिंग द मास ऑफ द रॉकेट। सो इन दैट केस हमारी फ्यूल रिक्वायरमेंट और कम होती है। तो यहां पे हम ये समझे कि एक्चुअल स्पेस में जाने के लिए यू डू नॉट नीड एस्केप वेलोसिटी, इवन यू डू नॉट नीड एनी मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी। In theory, you can design a rocket which can bring you to the space with whatever velocity you decide. है ना, आप जितनी भी स्लो वेलोसिटी से जाना चाहे तो आप जा सकते हैं। हालांकि प्रैक्टिकली वो कितना पॉसिबल है वो अलग सिनारियो है। ठीक है, तो हम स्पेस में तो पहुंच गए। स्पेस में पहुंचने से क्या मेरा काम हो जाएगा? नहीं होगा। मान लेते हैं मैंने एक पत्थर को उछाला, 1.6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से उछाला, वो एक्चुअली 120 किलोमीटर की हाइट पे गया, बट फिर क्या? वहां पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि वो एस्केप वेलोसिटी नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी नहीं थी, तो वो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होगी और वो फिर से गिरेगा। तो ये तो हमें नहीं चाहिए। अगर मेरा सैटेलाइट गिर गया एक हाइट पे पहुंचने के बाद, स्पेस में पहुंचने के बाद फिर से अर्थ पे गिर गया, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो तो मेरा फेल्यूर कहा जाएगा, मेरा मिशन फेल होगा।
तो ये पॉइंट पे आते हैं। इसके साथ में एक दूसरा, जैसे मैंने बताया कि शुरू में मैं 1 2 3 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और फिर हम कन्वर्ज होंगे एक कॉमन पिक्चर। तो अभी मैं एक दूसरे मिसकंसेप्शन पे आता हूं जो यूजुअली स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है, एंड दैट इज, हम सभी लोग देखते हैं, सुनीता विलियम्स के ही बहुत सारे वीडियोस हमने देखे हैं, स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखे या तो दूसरे जो भी प्रोब्स स्पेस में गए हैं, दे आर फीलिंग जीरो ग्रेविटी, वेटलेसनेस, और इन अदर वर्ड इट इज कॉल्ड माइक्रो ग्रेविटी। जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस में जब होते हैं तो वो वेटलेस फील करते हैं, वो जंप लगाते हैं तो उसके बाद वो वापस सैटेलाइट की सरफेस पे गिर नहीं जाते हैं, वो अंदर ही फ्लोट होते रहते हैं। आपने देखा होगा वो बॉल उछालते हैं या एप्पल उछालते हैं तो वो एप्पल हवा में उड़ता रहेगा, वो गिरेगा नहीं। अगर वो खड़े होंगे तो खड़े ही रहेंगे, अगर वो सो जाएंगे तो उनका बॉडी वर्टिकल नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। तो ये माइक्रो ग्रेविटी हमने देखी है। नाउ वी नो कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स माइक्रो ग्रेविटी एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स को पूछेंगे कि माइक्रो ग्रेविटी यानी कि जीरो ग्रेविटी, वेटलेसनेस क्यों फील करते हैं हमारे एस्ट्रोनॉट, तो एक कॉमन आंसर स्टूडेंट्स में से 90% स्टूडेंट एक ही आंसर देते हैं, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटेशन नहीं होता है, स्पेस में ग्रेविटेशन जीरो होता है, ये कॉमन आंसर देंगे। अब यहां पे मैं यूजुअली कोई भी इंटरेक्शन जब स्टूडेंट से करता हूं तो मैं कभी आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट उस पर नहीं पढ़ता हूं। आई ट्राई टू पोज काउंटर क्वेश्चंस कि उन्होंने जो आंसर दिया है उसको और रिफाइन करवाने के लिए मैं कैसा काउंटर क्वेश्चन प्रोड्यूस करूं। तो यहां पे मेरा काउंटर क्वेश्चन ये होता है कि मान लो एक अर्थ है और जैसे मैंने बताया बैरली 1/10 ऑफ द रेडियस हाइट पे, लो अर्थ ऑर्बिट पे 600 किलोमीटर पे मेरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम रहा है, और मैं बोलता हूं कि वहां पे स्पेस में ग्रेविटेशन जीरो है। 600 किलोमीटर की हाइट पे स्पेस में ग्रेविटेशन जीरो है। तो फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि मून, जो कि अर्थ से ऑलमोस्ट 4 लाख किलोमीटर, टू बी वेरी प्रिसाइज 3,84,000 किलोमीटर, 4 लाख किलोमीटर दूर अर्थ के ग्रेविटेशन में अर्थ के आजू बाजू घूमता रहता है। अगर 600 किलोमीटर पे स्पेस में ग्रेविटेशन नहीं लगता है अर्थ का, तो फिर 4 लाख किलोमीटर पे ग्रेविटेशन क्यों लगता है और मून को क्यों घुमाता है? अब ये तो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो गए। सो यहां पे हमें रीथिंक करना होगा कि वेटलेसनेस क्यों होती है। अब टेक्निकली हम सब लोग जानते हैं कि जो भी ऑर्बिट में ये जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है वो एक ऑर्बिट में घूमता है, उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स भी लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सो द एस्ट्रोनॉट्स orbiting with the satellite around the earth will not feel the gravitational acceleration, and hence their weight will be zero, if equivalent weight will be zero, and they will feel weightlessness. But ये तो हुई टेक्निकल बात। मैंने तो शुरू से ही आपको प्रॉमिस किया था कि मैं तो इंट्यूटिव डायरेक्शन में जाऊंगा, मैं टेक्निकल डायरेक्शन में नहीं जाऊंगा। एनीवे, जब मैंने ये पॉइंट रेज किया तो ये भी बता दूं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अगेन काइंड ऑफ अ कंसेप्ट कि जिसके बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, बट अभी हम उसके बारे में नहीं जाएंगे। तो वेटलेसनेस को इंट्यूटिवली इवन स्टैंडर्ड 5 के स्टूडेंट को भी अच्छे से समझ में आ सके, ऐसे में कुछ ऐसे एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूं। एट द एंड ऑफ माय टॉक आप ही बताएगा कि मैं कितना सक्सेसफुल हुआ हूं। बट यहां पे मैं 2 स्टोरीज बताता हूं, दो एनालॉजीज बताता हूं, जिसमें पहली एनालॉजी है जो न्यूटन ने खुद ने दी थी। न्यूटन ने खुद ने ये एनालॉजी दी थी। मान लेते हैं कि मैं ये अर्थ की सरफेस है और यहां पे मैंने एक
टावर बनाया हुआ है और उसके साथ मैंने एक कैनन अटैच की है। एक टावर के ऊपर मैंने कैनन अटैच की है, तोप। अब ये कैनन से मैं कैनन बॉल, तोप का गोला फायर करता हूं। मैं क्या करता हूं, उसके अंदर गन पाउडर भरता हूं और गन पाउडर के आगे में एक तोप का गोला भरता हूं और फिर गन पाउडर को मैं इग्नाइट करता हूं, तो उससे जो हॉट गैसेस प्रोड्यूस होंगे वो थ्रस्ट प्रोड्यूस करेंगे। अब मेरे पहले ही एक्सपेरिमेंट में मैंने जो गन पाउडर भरा ना, वो गन पाउडर एकदम फ्रेश गन पाउडर नहीं था, वो पुरानी दिवाली के रॉकेट में से निकाला हुआ था। तो हम जो गुजराती में बोलते हैं ना कि हवाई गયેલો दारू હતો, वो गन पाउडर खराब हो गया था। तो क्या करेगा कि वो गन पाउडर पूरा बर्स्ट नहीं होगा, तो मेरा जो कैनन बॉल है, तोप का गोला है, वो धीरे 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 सरक के फाइनली वो फ्री फॉल हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा वर्टिकली। वो दूर जाएगा ही नहीं, तोप के एंड से ही वो सीधा नीचे वर्टिकल फ्री फॉल हो जाएगा और वो वहीं पे नीचे गिरेगा। ठीक है, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे तो गन पाउडर अच्छी क्वालिटी का डालना है, तो मैंने थोड़ी अच्छी क्वालिटी का गन पाउडर डाला। बट अब मैं टेस्टिंग कर रहा हूं, क्योंकि मेरी गन पाउडर का मुझे टेस्टिंग भी करना है, तो मैंने थोड़ा ही गन पाउडर डाला। सो इन दैट केस मेरा जो गन पाउडर है वो थोड़ा ही फोर्स प्रोड्यूस करेगा एंड इन दैट केस मेरा कैनन बॉल कुछ ऐसे गिरेगा। हम जानते हैं कि ये जो शेप है ये पैराबोला है, इट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन में ये पैराबोला है होता है। अगेन दिस इज अ मिसकंसेप्शन। हम अच्छे से टेक्स्ट बुक में पढ़ाते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑलवेज पैराबोला अंडर द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर्स ड्रैग। अगर मैं एटमॉस्फेरिक ड्रैग को भी मैं भूल जाता हूं तो भी ये जो मोशन है वो पैराबोला है। ये टू बी वेरी प्रिसाइज इनकरेक्ट आंसर है। अगर आज टाइम रहता है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली पैराबोला नहीं होता है, कुछ और होता है, बट हम फिर भी उसको पैराबोला के तरह ट्रीट करते हैं और हमें सही आंसर आता है। क्यों? अगर टाइम रहेगा तो मैं डिस्कस करूंगा, बट मान लेते हैं कि ये पैराबोला मूव कर रहा है एंड दैट इज प्रैक्टिकली करेक्ट। मैं ज्यादा गन पाउडर डाला तो मेरा तोप का गोला और दूर जाएगा, और ज्यादा डाला तो और दूर जाएगा, और मेरे गन पाउडर बढ़ा रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल फोर्स बढ़ेगा और वो और दूर जाता जाएगा। जो होवित्जर तोप होती है ना, बोफोर्स तोप, जब खरीदी गई तब उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हुए थे और बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे, बट बाद में जब कारगिल वॉर में तो बोफोर्स तोप को हमने यूज किया तो काफी हाई एल्टीट्यूड पे वो काफी इफेक्टिव भी रही थी। बोफोर्स तोप को एक्चुअली हम कैनन नहीं बोल सकते, तोप नहीं बोल सकते, उसका टेक्निकल नाम है होवित्जर। तो ये जो होवित्जर होती है, तोप और होवित्जर में क्या डिफरेंस है आप गूगल कर सकते हैं। होवित्जर होती है वो जब कैनन बॉल थ्रो करती है, वो अपने तोप का गोला थ्रो करती है तो वो फ्यू टेंस ऑफ किलोमीटर्स जाता है। इतने दूर जब कोई कैनन बॉल ट्रैवल करता है, सो इन दैट केस ये अर्थ की जो सरफेस जो मैंने यहाँ पे फ्लैट दिखाई है वो मैं फ्लैट एज्यूम नहीं कर सकता हूं, मुझे अर्थ की कर्वेचर इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं जो डिस्टेंस कवर कर रहा हूं वो फ्यू मीटर्स का नहीं है, वो फ्यू टेंस ऑफ किलोमीटर्स का है। तो अब मैं अर्थ की कर्वेचर ड्रॉ करता हूँ, पूरे अर्थ को ही एक ऑर्बिट करता हूँ। यहाँ पे मैं मेरा टावर बना के उसके ऊपर मैं कैनन ड्रॉ कर रहा हूँ। पहला मेरा बॉल ऐसे गिरा था, दूसरा ऐसे, पैराबोला शेप। Pardon me if my drawings are a little incorrect, but yeah. तो ये कर रहे थे, जैसे जैसे मैं गन पाउडर बढ़ाता जाता हूँ मेरी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ती जाती है, मेरा कैनन बॉल और दूर जाता जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने हॉरिजॉन्टल अप्रोक्सीमेशन किया था अगर मैं उसको ही कंटिन्यू रखता तो ये कैनन बॉल यहाँ पे पहुंचता, बट सिंस दिस डिस्टेंस इज फ्यू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर और उतने डिस्टेंस में तो अर्थ की कर्वेचर इंट्रोड्यूस हो जाती है। अर्थ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू नो, बेंड्स फ्यू सेंटीमीटर एवरी किलोमीटर। आप वो बेंडिंग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो फ्यू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में इवेंचुअली ये गोला ऐसे जाएगा, तो इट विल ट्रैवल फॉर मोर टाइम
and it will travel farther distance also. And at the same time, if you will see, ये ऑर्बिट भी जो अभी तक प्योर पैराबोला थी वो अभी थोड़ी कर्व्ड हो रही है. अगर मैं इसको सफिशिएंट फेंकूं तो ये ऐसे जाएगा. अब इससे भी ज्यादा वेलोसिटी में दूंगा, एक स्पेसिफिक में वेलोसिटी दूंगा तो क्या होगा कि कैनन बॉल जो गिर रहा है वो एक कर्व्ड पाथ में गिर रहा है, और ये जो कर्व्ड पाथ की कर्वेचर है वो एग्जैक्टली अर्थ की कर्वेचर जितनी ही हो जाएगी. और अगर उतनी ही हो जाएगी तो मेरा कैनन बॉल जैसे जैसे गिरता जाएगा अर्थ भी उतनी ही कर्व्ड होती जाएगी. एंड इन दैट केस माय कैनन बॉल विल नेवर फॉल ऑन द अर्थ एंड इट विल ऑलवेज कंटिन्यूअसली मूविंग एंड इवेंचुअली हिट मी फ्रॉम द बैक. वो मेरे सर के पीछे, मेरे सर से ही टकराएगा. तो अगर मैं कोई कैनन बॉल को सफिशिएंट वेलोसिटी देता हूं तो वो कैनन बॉल की ट्रेजेक्टरी की कर्वेचर और अर्थ की कर्वेचर सेम हो जाएगी. एंड देन वी कैन से दैट दिस कैनन बॉल इज नाउ ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर शेप. टेक्निकली वी नो कि ये सर्कल में कितनी वेलोसिटी आपको देनी पड़ेगी, तो कि वो वेलोसिटी जिससे एस्केप वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसल कर, सॉरी नॉट एस्केप वेलोसिटी, पार्डन मी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसल कर दे. तो वो वेलोसिटी वो पर्टिकुलर हाइट पे रहेगी. आप जितने अर्थ से दूर जाएंगे उतना ग्रेविटेशन भी कम होता जाएगा और आपका रेडियस बढ़ता जाएगा. सो दिस इज काइंड ऑफ एन इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ अ सर्क्यूलर ऑर्बिट. ठीक है. अच्छा, अब यहां मजे की बात यह है कि दो दिस कैनन बॉल इज नॉट फॉलिंग ऑन द अर्थ, इट इज नॉट रीचिंग ऑन अर्थ सरफेस, स्टिल it is continuously falling under the impact of gravitation, under the effect of gravitation. मेरा कैनन बॉल है, जैसे पहले जो लो वेलोसिटी से मैंने उसको भेजा, थ्रो किया था, तब वो ग्रेविटेशन में गिर रहा था, अभी भी वो ग्रेविटेशन के अंदर गिर ही रहा है, बट उसका जो पाथ का कर्वेचर है वो अर्थ की कर्वेचर से मैच हो गया है, तो हम उसको ऑर्बिट में बोलते हैं. स्टिल इट इज फॉलिंग फ्रीली. दिस इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, any object in an orbit is always falling freely continuously under the gravitation. ये एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने पहले ही बताया न्यूटन ने ही दे दिया था, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑर्बिट. अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मुझे तो इवेंचुअली वेटलेसनेस पे जाना है. तो मैं यहाँ पे बच्चों को एक हाइपोथेटिकल चैलेंज देता हूं. मैं उनको बोलता हूं कि भाई वैसे तो मैं दिखता एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग लगता हूं, बट मैं एक्चुअली आई हैव अ सुपर पावर. मेरे पास इतना पावर है कि मैं पूरे के पूरे हाथी को अपने हाथों के ऊपर होल्ड कर सकता हूं. मैं पूरे के पूरे हाथी, सही लाइव जिंदा फुल फ्लेज फुल साइज एलिफेंट को मैं मेरे हाथ पे होल्ड कर सकता हूं. मैं हाथों से उठा सकता हूं और मैं ये दिखा सकता हूं. अगर आपको प्रूफ की जरूरत पड़े तो मैं फोटो भी खिंचवा सकता हूं कि ये मैंने एक हाथ से हाथी उठाया है. फिर बच्चे भी अलग अलग लॉजिक देते हैं. कोई बच्चा मुझे बोलता है कि आप हाथी के ऊपर शीर्षासन करके फोटो खींचेंगे और फिर उल्टा फोटो दिखाएंगे, तो आपको लगेगा आपने हाथी को उल्टा पकड़ा है. बच्चों के पास तो बहुत सारे लॉजिक होते हैं, जितना हमारे पास भी नहीं होता है ना. दे आर फ्रेश माइंड्स. मैं बोलता हूं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कोई ऐसी ट्रिक नहीं करने वाला हूं. मैं कोई ट्रिक कर सकता हूं, बट एक्चुअली मैं हाथी के पैर को मेरे हाथ पे रखूंगा और हाथी को उठाऊंगा. तो मैं फिर उनको थोड़ा बात को और थोड़ा एंटरटेनिंग बनाता हूं. मैं बोलता हूं कि भाई चैलेंज बड़ी है तो मुझे तो करोड़ों रुपए की चैलेंज लगानी पड़ेगी. अगर आप में से कोई रेडी है तो चलो हम 1-1 करोड़ रुपए की चैलेंज लगाते हैं. अब जब इतना चैलेंज मैंने लगाया है और मुझे प्रूव करना है तो आई कैन इन्वेस्ट सम मनी. तो मैं क्या करता हूं, एक कार्गो प्लेन हायर करता हूं. और कार्गो प्लेन हायर करने के बाद मैं क्या करता हूं कि मैं एक एलिफेंट भी हायर करता हूं क्योंकि मुझे एलिफेंट को उठाना है, और साथ में मैं एक फोटोग्राफर भी हायर करता हूं क्योंकि मुझे फोटो भी चाहिए. फिर मैं तीनों को, मैं खुद एलिफेंट
और फोटोग्राफर, हम तीनों ही प्लेन में चले जाते हैं और कार्गो प्लेन को मैं अराउंड अच्छी खासी हाइट पे 10 किलोमीटर की हाइट पे उड़ाता हूं। When that cargo plane is flying at that height, मैं कार्गो का जो बैक डोर है उसको ओपन करता हूं और कैसे भी पुश करके मैं एलिफेंट को नीचे गिरा देता हूं। अब जैसे ही एलिफेंट नीचे गिरने लगता है, मैं भी उसके पीछे गिरने लगता हूं, ऑफ कोर्स पैराशूट के साथ। एलिफेंट को मैंने पैराशूट नहीं दिया था, उसका बड़ा पैराशूट होता नहीं है। एनीवे, सिंस आई हैव नॉट पेड टू माई फोटोग्राफर, उसको भी मेरे पीछे आना पड़ेगा क्योंकि मेरा पेमेंट बाकी है, तो वो भी मेरे पीछे गिरेगा। तो अब हम तीनों ही, मैं, एलिफेंट और फोटोग्राफर तीनों ही गिर रहे हैं। एलिफेंट भी फ्री फॉल कर रहा है, मैं भी फ्री फॉल कर रहा हूं, फोटोग्राफर भी फ्री फॉल कर रहा है। इन दिस कंडीशन एलिफेंट के पैर के नीचे मैं हाथ रख दूंगा। आप देख सकते हैं कि पूरा एलिफेंट मेरे हाथ के ऊपर है और फोटोग्राफर उसका फोटो भी खींच सकता है। एलिफेंट इज नॉट होल्ड बाय एनीथिंग एल्स, उसको जस्ट एक ही पॉइंट पे कांटेक्ट है, वो मेरे हाथ का कांटेक्ट है और वो आप देख सकते हैं। और फिर मैं क्लेम कर सकता हूं कि मैंने एलिफेंट को उठा दिया। क्या पॉइंट है यहाँ पे? यहाँ पे पॉइंट ये है कि एलिफेंट भी फ्री फॉल कर रहा है, मैं भी फ्री फॉल कर रहा हूं, तो मुझे तो जस्ट हाथ ही लगाना है, मेरे हाथ पे कोई वेट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एलिफेंट फ्री फॉल कर रहा है तो वो वेटलेस फील कर रहा है। वेट क्या होता है? कोई भी चीज में मेरे हाथ पे पकड़ता हूं, मैं उसको गिरने नहीं देता हूं, मेरा हाथ उसको गिरने नहीं देता है, बट ग्रेविटेशन तो उसको खींचता है। तो वो जो खिंचाव है वो मेरे हाथ को प्रेशर प्रोड्यूस करता है। एक तरीके से प्रेशर वर्ड अगेन टेक्निकली नहीं, मैं यहाँ पे इंट्यूटिवली बोल रहा हूँ। तो वो जो फोर्स लगाता है, वो फोर्स को मैं वेट के तौर पे एक्सपीरियंस करता हूँ। ये जितना मैसिव, उतना ज्यादा फोर्स वो ग्रेविटेशन लगाएगा और उतना मुझे ज्यादा वेट फील होगा। बट अगर ये हेवी चीज के ऊपर ग्रेविटेशन लगता है और ग्रेविटेशन में वो फ्री फॉल हो रहा है, तो अब कोई वेट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटेशन जो अपना काम कर रहे है तो फ्री फॉलिंग में हो रहा है, कोई चीज उसको रोक नहीं रही है, स्टॉप नहीं कर रही है, तो वेटलेसनेस होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, when something is falling freely under the gravitation, it will feel weightlessness. अब हम दोनों स्टोरीज को मर्ज करते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऑर्बिट में होता है तो वो फ्री फॉल करता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो वो वेटलेसनेस फील करता है। तो दोनों को आप मर्ज करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो भी सर्कुलर ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट खुद और उसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट है वो भी ऑर्बिट में ही है, तो वो कंटिन्यूअसली फ्री फॉल मोशन में होने की वजह से ही वो वेटलेसनेस फील करते हैं। नॉट बिकॉज द लैक ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन तो है बट वो अपना काम किए जा रहा है और सैटेलाइट को ऑर्बिट में घुमाए जा रहा है। ठीक है, तो ये वेटलेसनेस भी मैंने यहां पे अच्छे से एक्सप्लेन किया। नाउ लेट मी एक्सटेंड दिस डिस्कशन फर्दर। जो मैंने पहला न्यूटन का एक्सप्लेनेशन दिया था उसको मैं और थोड़ा फर्दर पुश करता हूं और उसको हम कनेक्ट करते हैं आज के दिन की थीम से, चंद्रयान। चंद्रयान 1, 2 या 3 हमने जो मून पे भेजा, वो हमने कैसे भेजा? अपोलो मिशन भी तो मून पे गया था, चंद्रयान 3 भी मून पे गया। दोनों में क्या फर्क था? दोनों की ट्रेजेक्टरी में क्या फर्क था? वो थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं। कई बार स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ उसके तो काफी दिनों बाद, काफी हफ्तों बाद वो चांद पे पहुंचा, बट अपोलो मिशन में तो जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो तो विद इन डे और 2 पहुंच गए थे, फ्यू डेज में वो मून पे पहुंच गए थे। तो ऐसा क्यों डिफरेंस है? सो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दैट, बट नॉट स्ट्रेट अवे। अगेन मैं यहाँ पे मेरी जो इनिशियल फर्स्ट स्टोरी थी उसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ। So let me first share my screen again. Entire screen. Essentially, share and yes. So देखिए, let me draw the same diagram again. Yes. अर्थ है, उसके ऊपर एक टावर बनाया। टावर में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट मार्क करना चाहता हूं, और यहाँ पे एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से एक
ऑब्जेक्ट ऑर्बिट कर रहा है और वो सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा है. यू कैन सी दिस सर्कुलर ऑर्बिट, राइट? यस. मैंने क्या किया था, पहले तो मैंने ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी से फ्री फॉल करवाया था. फिर मैंने वेलोसिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ाई तो वो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग टाइम कवर करके वो नीचे अर्थ पे नीचे गिर रहा था. और बाद में मैंने एक सफिशिएंट वेलोसिटी दी तो वो ऑर्बिट में आ गया. मान लेते हैं और मैं वेलोसिटी बढ़ाता हूं तो क्या होता है, वही पॉइंट पे, यही पॉइंट पे मैं वेलोसिटी और बढ़ाता हूं तो क्या होगा, अब उसके पास इतनी वेलोसिटी, इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि नाउ इट विल गो फार्दर देन इट्स इनिशियल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन सरफेस से जितना ऊपर था उससे वो ज्यादा दूर जाएगा, बट दूर जाके इवेंचुअली इट हैज टू रिटर्न बैक, और ये ऐसे आएगा. तो अभी जो सर्कुलर ऑर्बिट थी उससे भी मैं ज्यादा टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी में बढ़ाऊंगा तो वो सर्कल का कन्वर्जन हो जाएगा इलिप्स में. जैसे जैसे मैं वेलोसिटी बढ़ाता जाऊंगा मेरे इलिप्स एक्सटेंडेड होता जाएगा, एसेंट्रिसिटी बढ़ती जाएगी. सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 होती है, हम सब जानते हैं. 0 से जितनी आप एसेंट्रिसिटी बढ़ाते हैं टिल वैल्यू 1, 0 से 1 के बीच में आप जितनी एसेंट्रिसिटी बढ़ाते हैं इलिप्स उतना एलोंगेटेड होता जाता है. अब जरूरी नहीं है कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी ही मुझे ज्यादा करनी है. अगर मेरे सैटेलाइट जो कि एक ऑर्बिट में है उसके साथ मैंने एक छोटा इंजन, रॉकेट इंजन, जिसको हम एक्चुअली थ्रस्टर रॉकेट बोलते हैं, थ्रस्टर इंजन मैंने अटैच किया हुआ है, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में है. एक सम पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर मैं वह थ्रस्टर्स को थोड़ी सेकंड्स के लिए भी मैं चालू करता हूं, थोड़ी सेकंड्स या थोड़ी मिनट्स के लिए भी, तो भी वो उसकी वेलोसिटी प्रोड्यूस करेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और वो सर्कुलर ऑर्बिट अब इलिप्टिकल ऑर्बिट में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर आप ये समझ चुके हैं कि ऑर्बिट की एसेंट्रिसिटी में चेंज कर सकता हूं, कैसे चेंज कर सकता हूं, यहां तो मैंने बढ़ाने की बात की, सर्कल में से इलिप्स में मैं गया, बट यही सिनेरियो में उल्टा भी कर सकता हूं. अगर मेरा रॉकेट मेरा सैटेलाइट ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मेरा थ्रस्टर में पीछे की साइड नहीं बर्न करता हूं, मैं आगे की साइड बर्न करता हूं, यानी कि मैं एक तरीके से मेरी वेलोसिटी बढ़ा नहीं रहा हूं, बट रॉकेट को आगे की साइड बर्न करके मैं वेलोसिटी कम कर रहा हूं. तो अभी जो मेरा ऑर्बिट जो था उससे कम एसेंट्रिक ऑर्बिट में मैं आ जाऊंगा. सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप ऑर्बिट में कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही, इसको हम पेरिजी बोलते हैं या तो पेरीहिलियन पॉइंट बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेरिजी पे हम ये प्ले करते हैं. कभी कभी एपोजी जो फारदेस्ट पॉइंट होता है उस पे भी प्ले करना होता है, अगर जरूरत पड़ी मैं एक्सप्लेन करूंगा. तो अगर यहाँ पे मैं टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ में प्ले करूंगा तो मेरी ऑर्बिट की एसेंट्रिसिटी में बढ़ा भी सकता हूं, कम भी कर सकता हूं. अगर ये आप समझ चुके हैं तो नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि हमारा चंद्रयान मून पे कैसे पहुंचा. तो देखिए ये अर्थ है, अर्थ से हमने चंद्रयान 1, 2 या 3 किसी को भी ले लीजिए, हमने उसको लॉन्च किया था PSLV से. PSLV is Polar Satellite Launch Vehicle, which is a smaller vehicle compared to GSLV, जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेजता है. कोई भी सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजना होता है तो आपको बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत होती है, तो पावरफुल रॉकेट चाहिए. जबकि पोलर ऑर्बिट, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जो ऑर्बिट होती है, जो टिपिकली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यूज करते हैं, वो लो अर्थ ऑर्बिट होती है. और लो अर्थ ऑर्बिट मैंने जैसे बताया 600 किलोमीटर, 400-600 किलोमीटर की ऑर्बिट में होता है, तो वहां पे छोटा रॉकेट भी चल जाता है. PSLV इज दैट काइंड ऑफ रॉकेट जो पोलर ऑर्बिट में भेजता है. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आया कि मुझे तो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट 36,000 किलोमीटर नहीं, मुझे तो 4 लाख किलोमीटर दूर चांद पे पहुंचाना है, तो मुझे तो और पावरफुल रॉकेट चाहिए. मैंने क्यों PSLV से किया? हमने यहाँ पे ट्रिक की, जो मैंने अभी आपको समझाया वही टेक्निक हमने यूज करके, PSLV यूज करके, छोटा रॉकेट यूज करके हम चांद पे पहुंचे. ये अर्थ है और ये चांद है. तो मैं रॉकेट लॉन्च करके सीधा चांद पे नहीं गया था, ऐसा ट्रेवल मैंने नहीं किया था. ये ट्रैवल किया था अपोलो ने, क्योंकि उसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स थे, ह्यूमन थे, तो टाइम कम था, चांद पे पहुंच के वापस आना था, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्ग लिया था. जबकि हमने क्या किया, पहले तो PSLV से
एक लोअर ऑर्बिट में मेरे सैटेलाइट को मैंने सेट किया, मेरा जो चंद्रयान था उसको मैंने सेट किया। उसके बाद एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मैंने थ्रस्टर को बर्न किया और रॉकेट की वेलोसिटी बढ़ाई। तो अब जो सर्कुलर ऑर्बिट थी वो थोड़ी इलिप्सिकल हो गई। कुछ ऑर्बिट कंप्लीट करने के बाद फिर से यही पॉइंट पे मैंने और थ्रस्टर चालू किया और वेलोसिटी बढ़ाई, तो और ये एक्सटेंड हो गई। ऐसे मैंने 6 बार एक्सटेंड किया इसको। कितनी बार एक्सटेंड किया? 6 बार। और जब मैंने 6 बार एक्सटेंड किया, जो मून था इतने ड्यूरेशन में, इट वाज अ कैलकुलेटेड स्टफ। तो मेरा कैलकुलेशन था कि जब मैं छठी बार ऑर्बिट में चेंज करूंगा और मेरा सैटेलाइट जब यहां पे पहुंचेगा, तब चांद भी अपनी ऑर्बिट में एग्जैक्टली यहां पे आ जाएगा। तब चांद भी यहां पे आ जाएगा, जो पहले यहां कहीं पे था वो भी अपनी ऑर्बिट में जा रहा है। अब क्या होगा, मेरा जो सैटेलाइट है ना, दैट इज क्लोजर टू द मून फार्दर फ्रॉम द अर्थ। तो अब मून का ग्रेविटेशन ज्यादा लगेगा। कैलकुलेटेड पोजीशन पे मैंने एग्जैक्टली थ्रस्टर ऐसे चलाया यहाँ पे कि अब मेरा सैटेलाइट अर्थ की बजाय मून की ग्रेविटेशन में चला जाए। सो नाउ माय सैटेलाइट इज शिफ्टेड फ्रॉम अर्थ्स ऑर्बिट टू मून्स ऑर्बिट, है ना। गिव मी अ मिनट। हाँ, तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे ये मून है, तो ये मून की ऑर्बिट में चला गया और मून की ऑर्बिट में ये अगेन इलिप्टिकल ऑर्बिट में आ गया। फिर मैं क्या कर रहा हूं, अब यही पॉइंट पे या तो ये पॉइंट पे मैं थ्रस्टर्स चालू करके जो ऑर्बिट है उसकी एसेंट्रिसिटी में कम कर रहा हूं, और जैसे जैसे मैं कम कर रहा हूं आई एम रीचिंग क्लोजर टू द मून एंड इवेंचुअली मैं 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में मून के आजू बाजू सेट हो गया। तो अब मेरी जो ऑर्बिट है वो मून के आजू बाजू 100 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे मैंने फिक्स ऑर्बिट कर दी, और फिर मैं वहां से मून के सरफेस की इमेजेस लेने लगा, या उसके बाकी के जो भी मेरे एक्सपेरिमेंट से पेलोड्स हैं वो सब काम करने लगे। तो मैंने जैसे बताया कि लो अर्थ ऑर्बिट में भी मैंने चंद्रयान सेट करके पहले धीरे धीरे एक ही पॉइंट पे बूस्टर्स बढ़ा के ऑर्बिट को एसेंट्रिक बनाई, अर्थ से दूर जाता गया, चांद के नजदीक गया, और वहां से फिर मैंने हाईली एसेंट्रिक में चांद की ऑर्बिट में ट्रांसफर हुआ, और वहां ऑर्बिट में ट्रांसफर होने के बाद धीरे धीरे मैंने मेरी ऑर्बिट की एसेंट्रिसिटी कम करनी शुरू कर दी, और मैं धीरे धीरे चांद की नजदीक चला गया। और जैसे मैं चांद के नजदीक चला गया, एक स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट में मैं घूमने लगा। सो दिस इज द वे वी रीच ऑन द मून, बट इट टुक फ्यू वीक्स। बट हमें कोई जल्दी नहीं थी, हमारा तो मेन मिशन था नहीं। चांद पे जो मेन मिशन हम करने वाले हैं वो तो 2040 का अभी हमने डेडलाइन लिया हुआ है, तो चंद्रयान 1, 2, 3 में तो था नहीं। तो यहाँ पे मेरा प्राइम इंपॉर्टेंस था मिनिमम फ्यूल से मैं कैसे जा पाऊं। तो अगर मैं सीधा जाता तो मुझे बहुत फ्यूल की जरूरत होती, जबकि मैंने ऑर्बिट ट्रांसफर मेथड अप्लाई, इसको बोलते हैं ऑर्बिट ट्रांसफर। ऑर्बिट ट्रांसफर मेथड मैंने अप्लाई की, तो यहाँ पे मैं मून पे लो कंजम्पशन में चला गया। अगर इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊं और मून मिशन से आगे बढ़ के मैं मार्स मिशन पे जाता हूं कि मार्स पे हम कैसा पहुंचे थे। सेम मेथड यूज की थी, जस्ट एक स्टेप बढ़ गया था, एंड दैट इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं नेक्स्ट लास्ट एंड पार्ट में मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट थिंग्स। तो देखिए वहां पे क्या था, ये सन है, ये अर्थ है, ये अर्थ की ऑर्बिट है, और ये मार्स की ऑर्बिट है। अब अर्थ की ऑर्बिट में अर्थ है, मार्स की ऑर्बिट में कहीं पे मार्स होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले तो मैंने मून ऑर्बिटर को अर्थ के नियर ऑर्बिट में घुमाया, फिर मैं उसकी ऑर्बिट को एसेंट्रिक करता गया। यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं सीधा मार्स पे पहुंचूं, क्योंकि मार्स की ऑर्बिट काफी दूर है, उतना एसेंट्रिक करने के लिए मुझे बहुत फ्यूल चाहिए। तो यहाँ मैंने क्या किया, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे अभी तक जो सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशन में अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है, यहाँ पे मैंने ऐसा किया कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मैंने थ्रस्टर ऐसे बर्न किया कि अब ये ऐसे चलने लगा, एंड नाउ इट लेफ्ट
Earth's gravitation, rather it encountered more stronger gravitation of the sun. और ये सन की ग्रेविटेशन में सन के आजू बाजू ऑर्बिट में लगा। तो अर्थ ऑर्बिट को से मैंने मार्स मिशन को मैंने ट्रांसफर किया हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट, हेलियो यानी सन, हेलियोस यानी सन। तो अर्थ की ऑर्बिट में से मैंने उसको ट्रांसफर किया सन की ऑर्बिट में, बट सन की ऑर्बिट में मैंने ऐसे ट्रांसफर किया कि उसकी ऑर्बिट मार्स की ऑर्बिट को क्रॉस करे, और मैंने सन के आजू बाजू पूरी ऑर्बिट कंप्लीट नहीं करवाई, बट मैंने ऐसे कैलकुलेटेड ऑर्बिट सेट की कि जब मेरा सैटेलाइट मार्स की ऑर्बिट को क्रॉस करता है तभी मार्स भी अपनी ऑर्बिट में वहां पे पहुंचेगा। तो अब मेरा सैटेलाइट और मार्स दोनों ही रेंडेवू, वो दोनों मिलेंगे वहां पे, और मिलेंगे तो फिर मैं थ्रस्टर्स बर्न करके मार्स के ग्रेविटेशन में मार्स की ऑर्बिट में चला जाऊंगा। अगेन पहले इलिप्टिकल ऑर्बिट, बाद में इलिप्टिसिटी कम करते करते ऑर्बिट ट्रांसफर करते मार्स की ऑर्बिट में मैं स्मॉलर सर्कुलर ऑर्बिट में आ गया। तो यहाँ पे अर्थ ऑर्बिट से ट्रांसफर हुआ सन ऑर्बिट, और सन ऑर्बिट से ट्रांसफर हुआ मार्स ऑर्बिट। तो ये तरीका था, हम जो बोलते हैं ना मार्स मिशन के बारे में कि अहमदाबाद का ऑटो वाला जितना चार्ज लेता है ना, उससे भी सस्ते में पर किलोमीटर रेट से हम मार्स पे पहुंचे थे। तो उसके लिए हमने ये ऑर्बिट ट्रांसफर मेथड अपनाई थी। तो ये मैंने आपको बताया ऑर्बिट ट्रांसफर मेथड कि ऑर्बिट्स ऐसे ट्रांसफर होती है। यहां पे मैं फिर से मेरे पहले क्वेश्चन पे आता हूं। मैंने आपको बताया था कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, कि एस्केप वेलोसिटी होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं वो इनिशियल वेलोसिटी दूं तो वो अर्थ से बाहर 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 इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। बट यहां मैं सिर्फ अर्थ को ही काउंट कर रहा था। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो मैंने कैलकुलेट की थी वो सिर्फ अर्थ के लिए की थी। एक्चुअली अगर मैं एटमॉस्फेरिक ड्रैग को भूल भी जाऊं, फिर भी कोई पत्थर को मैं फेंकूं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से, फिर भी वो पत्थर इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं पहुंचेगा। अर्थ के ग्रेविटेशन में तो वो दूर 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 जाएगा, बट जैसे ही वो अर्थ से दूर जाएगा ना, अर्थ का ग्रेविटेशन तो कम होता जाएगा, बट उसके ऊपर सन का भी ग्रेविटेशन लगता है। फॉरगेट अदर प्लेनेट, सन का भी ग्रेविटेशन लगता है। तो सन का ग्रेविटेशन ओवरकम करने के लिए उसके पास वो पॉइंट पे सफिशिएंट वेलोसिटी नहीं होगी। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 11.2 किलोमीटर वेलोसिटी से अगर मैं अर्थ की सरफेस से कोई पत्थर को फेंकूं तो वो पत्थर अर्थ के ग्रेविटेशन से तो दूर 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 जाएगा, बट इवेंचुअली वो ट्रैप हो जाएगा सन के ग्रेविटेशन में, और सन की ऑर्बिट में, हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट में वो घूमने लगेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं जाएगा। हालांकि एस्केप वेलोसिटी थियोरेटिकल कंसेप्ट है जिसमें हम सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट, हमारे केस में अर्थ का ही ग्रेविटेशन कैलकुलेट करते हैं, बाकी ऑब्जेक्ट भूल जाते हैं। बट जब आप प्रैक्टिकली सोचे तो ऐसे काफी सारे इंटरेस्टिंग सिनारियोज आप सोच सकते हैं। वेरी लास्ट पॉइंट and then I will end my talk and the forum will be open for questions if any. मैंने आपको बताया कि एस्केप वेलोसिटी है ना, वो मास और रेडियस दोनों पे डिपेंड है। अर्थ की सरफेस पे वो 11.2 है, बट अगर मैंने अर्थ को श्रिंक कर दिया, साइज आधी कर दी, सरफेस है वो सेंटर से नजदीक आ गई, तो वो वेलोसिटी अब 11.2 नहीं रहेगी, वो अब डबल हो जाएगी, वो 22.4 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी। और मैं आधी कर दूं तो वो वेलोसिटी नई सरफेस पे, नई इमेजिनरी सरफेस पे अब 44.8 किलोमीटर हो जाएगी। अगर मैं अर्थ को श्रिंक करता ही रहूं, मास सेम रखता हूं, श्रिंक करता ही रहता हूं, इमेजिनरी, मान लो आप अर्थ को मैंने 1 सेंटीमीटर का कर दिया, अपने जो मार्बल से खेलते हैं ना, लखोटी मार्बल से खेलते हैं हम बच्चे, वो साइज का कर दिया, अर्थ का मास सेम रखा, साइज मार्बल जितनी कर दी, तो वो मार्बल जितनी अर्थ की नई सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी होगी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ये नई वाली अर्थ की सरफेस से अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाना है तो उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। बट इतनी वेलोसिटी तो लाइट की है,
इन अदर वर्ड्स कि अगर मैंने अर्थ को मार्बल से भी थोड़ा भी छोटा किया तो अब उसकी नई सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाएगी. दैट मीन्स नथिंग, नॉट इवन लाइट कैन एस्केप फ्रॉम दैट न्यू स्मॉल अर्थ. And then we can safely say that the earth has become black hole. क्योंकि ब्लैक होल यही होता है, वो इतना डेंस, इतना छोटा होता है कि उसकी सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा होती है, जो लाइट भी नहीं कर पाती है. अगर मैं कोई ब्लैक होल पे खड़ा हूं और मैं कोई लेसर बीम अपवर्ड थ्रो करता हूं, तो लेसर बीम एक्चुअली एक पत्थर की तरह ऊपर जाएगा, बैंड होगा और वापस आएगा. Light will bend in that extreme gravitation. तो ये ब्लैक होल का कंसेप्ट है. तो हमने एक पत्थर उछालने से जो स्टोरी चालू की थी, वो इवेंचुअली मैंने ब्लैक होल पे आप सबको लाके खत्म की है. अब वो ब्लैक होल से बाहर कैसे आना, वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मेरा टॉक मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ. थैंक यू. Thank you very much, sir. Now the platform is open for questions. Raise your hands, student and faculties member. Sir, one question on the chat box. Can we tell it space-time curvature? I can't hear you clearly. Space time curvature की कुछ बात आप कह रहे हैं. Okay. Can we tell it space-time curvature? One question. Yes. So space-time curvature is always there. We are living in space-time curvature. The only thing is that curvature is so feeble that for our practical purpose, we approximate it as a flat space-time. समझाता हूं मैं आपको स्पेस टाइम कर्वेचर क्या होता है. तो बेसिकली आइंस्टाइन ने ये बताया था कि स्पेस और टाइम, स्पेस यानी एक्स वाई जेड एक्सिस और टाइम यानी फोर्थ एक्सिस, टाइम एक्सिस. स्पेस एक्स वाई जेड स्पेस एक्सिस की तरह मैं उसको स्केल से नहीं नाप सकता हूँ, उसको नापने के लिए मुझे घड़ी चाहिए, हालांकि वो भी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है. बट स्पेस और टाइम चारों में मिलके एक 4 डायमेंशनल ग्रिड बनाते हैं. बट अर्थ पे जैसे मुझे एक्स वाई और जेड तीनों लीनियर दिखते हैं, चौथा एक्सिस टाइम भी मैं लीनियर ही लेता हूं, क्योंकि टाइम भी मेरे लिए लीनियर ही सेकंड बाय सेकंड लीनियरली मूव होता है. अगर आप ग्रेविटेशन काफी बढ़ाते हैं ब्लैक होल के केस में, तो वो जो स्पेस और टाइम का जो ग्रिड होता है वो अब लीनियर नहीं रहता, वो कर्व्ड बन जाता है, वो कर्व हो जाता है. एंड दैट स्पेस टाइम कर्वेचर explains the curved path of lesser torch I have told you. अर्थ पे अगर मैं कोई लेसर टॉर्च चलाऊंगा तो वो लेसर का बीम सीधा जाएगा. हम बोलते हैं वो सीधा जा रहा है, एक्चुअली वो सीधा नहीं जा रहा है, अर्थ के ग्रेविटेशन में हल्का सा बेंड हो रहा है, बट वो इतना हल्का बेंड होगा कि इवन बेस्ट पॉसिबल एपरेटस विल नॉट मेजर दैट बेंड, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन सरफेस पे कम है. बट अगर यही अर्थ को मैंने मार्बल बना दिया तो वहां पे वो स्पेस टाइम इतना कर्व्ड होगा कि वहां पे मैं कोई लेसर बीम फेंकूंगा तो वो स्पेस टाइम में कर्व होगा, स्पेस टाइम कर्वेचर के साथ लेसर भी कर्व होगा. एंड इन दैट केस यू विल फील दैट स्पेस टाइम कर्वेचर. So gravitation curves the space time, and that is called gravitational effect. I hope I have answered. Thank you, sir. Khushi Doshi. Yes. Please on your mic. તમારું માઇક ચાલુ કરો અને ક્વેશ્ચન પૂછી શકો છો. તમે મને ગુજરાતીમાં પણ પૂછી શકો, હિન્દીમાં બી પૂછી શકાશે, વાંધો નહીં. એટલા જ માટે મેં ખુશી દોશી. Yes, sir. Yeah, please. Sir, so basically my question is that as you told that when satellites from Earth will escape the Earth's orbit, then satellite will catch sun's orbit, okay, like a gravitational field. Right. So Right. is it like that all planets are holding each other by gravity? Planets are holding in their orbit by sun's gravity. Each other's gravity is perturbing each other's orbit. जुपिटर अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, उसके पीछे सैटर्न घूम रहा है, तो वो दोनों जब नजदीक आ रहे होते हैं तब वो एक दूसरे की ऑर्बिट को स्लाइटली पर्टर्ब करते हैं, है ना. बाकी उनकी जो ऑर्बिट सन के आजू बाजू है वो सन के ग्रेविटेशन से ही है.
तो ये मल्टी बॉडी प्रॉब्लम हो गए। जब आप दो बॉडी, सन और एक प्लेनेट, वो दो ही बॉडी है, तो आप उसको कोई भी इनिशियल कंडीशन, सन की इनिशियल पोजीशन, प्लेनेट की इनिशियल पोजीशन और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी, ये चार लिमिटिंग कंडीशन लेके आप उसकी ऑर्बिट को एक्यूरेटली डिफाइन कर सकते हो। बट व्हेन इट इज थ्री बॉडी प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ यू नो कि जनरलाइज्ड इनिशियल कंडीशन में उसको एक्यूरेटली सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो सोलर सिस्टम एंड होल यूनिवर्स इज एक्चुअली अ मल्टी बॉडी प्रॉब्लम। इट कैन नॉट बी mathematically solved accurately, but nature do not need mathematical solution. It is running on its own by its own rules, है ना? तो वो सब चलता रहता है। Okay, sir. But how vacuum works on it? Vacuum? Works on it because space is a kind of vacuum only. हाँ, so yes, space is a vacuum. What we say, मैंने जैसे शुरू में बताया, vacuum है भी और नहीं भी। अर्थ पे एटमॉस्फेयर इतना थिक है और इतना हाई प्रेशर डेंसिटी है क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन एटमॉस्फेयर को होल्ड कर रहा है। कितने एटमॉस्फेयर को होल्ड कर रहा है? मैंने जैसे बताया, टिपिकल 100 किलोमीटर का जो टिपिकल एटमॉस्फेयर है, एक्चुअली थर्मोस्फेयर तो 1000-2000 किलोमीटर पे जाता है, बट वो दैट इज पार्ट ऑफ स्पेस, थर्मोस्फेरिक स्पेस। तो ये जो थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर 100 किलोमीटर, उतनी ही एयर को अर्थ ग्रेविटी होल्ड कर पा रहा है। छोटे ऑब्जेक्ट पे जाइए, मार्स, तो मार्स है, उसका ग्रेविटेशन और कम है, तो उसका एटमॉस्फेयर अर्थ से भी फीबल है। मार्स की सरफेस पे प्रेशर 100वें भाग का है अर्थ के एटमॉस्फेयर की कंपेयर में। उससे भी छोटे ऑब्जेक्ट पे आप जाएंगे, मून पे, तो मून का ग्रेविटेशन उतना है ही नहीं कि वो कोई एयर को होल्ड कर पाए, अट्रैक्ट करके पकड़ पाए। तो मून का अपना खुद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, हालांकि थर्मोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर क्या है? इट इज नॉट गुड टाइम टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स, टाइम नहीं है। बट बेसिकली जो स्पेस इतना वास्ट है और उसके अंदर मटेरियल इतना कम है, मटेरियल यानी एयर, मॉलिक्यूल, एटम्स, प्लाज्मा एंड सॉलिड पार्टिकल्स, डस्ट से लेके प्लैनेट्स और स्टार तक, सब कुछ इतना फीबल है कि पूरा यूनिवर्स एयर या तो कोई मटेरियल से भर नहीं सकता है। तो वहां पे ऑलमोस्ट वैक्यूम है। बट अर्थ, मार्स और इवन हेवी ऑफ प्लेनेट पे जाइए आप, जुपिटर, उसका ग्रेविटेशन और ज्यादा है तो उसका एटमॉस्फेयर और ठीक है। या सन का भी तो खुद का एटमॉस्फेयर है, कोरोना जिसे बोलते हैं, वो अपने ग्रेविटेशन से वो गैस को होल्ड करते हैं और वो अपना खुद का एटमॉस्फेयर बनाते हैं। तो वैक्यूम इज नेचुरल स्टेट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलवेज अवेलेबल ऑन सम काइंड ऑफ सरफेस ऑफ द बॉडी इटसेल्फ। यूनिवर्स में वैक्यूम इज नेचुरल है, जबकि हम अर्थ पे रहते हुए हमारे लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेचुरल है। हमारे लिए जो नेचुरल है ना, वो यूनिवर्स में नेचुरल यानी सब कुछ नेचुरल है, बट यानी कॉमन, आई वुड से कॉमन। हमारे लिए जो कॉमन है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो यूनिवर्स में कॉमन नहीं है, वहां पे वैक्यूम कॉमन है। वैसे ही हम अर्थ पे क्वाइट कंफर्टेबल लो टेम्परेचर में रह रहे हैं, तो हमारे लिए मोलेक्युलर और एटॉमिक स्टेट कॉमन है। बट आप यूनिवर्स में जाएंगे तो एटॉमिक और मोलेक्युलर स्टेट उतने कॉमन नहीं है जितना प्लाज्मा कॉमन है। हमारे लिए प्लाज्मा रिलेटिवली अनकॉमन है, यूनिवर्स में प्लाज्मा कॉमन है, मोलेक्यूल और एटम का स्टेट अनकॉमन है। आप पूरे यूनिवर्स में अगर आप देखेंगे तो प्लाज्मा ज्यादा है कंपेयर टू मोलेक्यूलर एटम्स। So yes, this is how I can explain vacuum. Thank you, sir. Yeah. Anyone? Thank you. The last questions. Anyone? Who in general push for the last questions? Time permit the last questions. Yeah. No, sir. Okay. Yeah. Thank you, sir. So, dear all, esteemed. Time to close our event. So before the closing the event, I would like to vote of thanks. Dear all, esteemed guests and respected colleagues and fellow space aficionados, as we know, we come to close the enlightening session of the physics of satellite orbits. I would like to extend our heartfelt gratitude to everyone who made today's event both the informative and inspiring. First and foremost, I want to express our sincere appreciations to our esteemed speaker, Dr. Vishal Bhai Joshi, scientist at PRL Ahmedabad,
Your deep knowledge and clear explanation of complex principles governing the satellite orbits have truly broadened our understanding from the fundamental concept of gravitational force and orbital mechanics to interactive details of how these principles are applied in the real world satellite missions. Your presentation was both the comprehensive and accessible. Your ability to break down such a intricate topic and make them engaging, the truly commendables. Thank you very much, sir, for the wonderful talk. Thank you very much, sir, for this one. I would also like to extend my heartfelt gratitude to Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Kamal Singh Dodia, for dedicating valuable time to deliver an inspiring speech to our young students on the special day of the National Space Day. I also wish to express my appreciation to the organizers, including IAPT RC7 President Professor PC Vinod Kumar sir, Secretary Dr. Puthul Desai, and Professor Nikesh Shah sir, along with his team from the Department of Physics at Saurashtra University. Additionally, I would like to acknowledge the technical team led by the Chintan Panchasra for their delighting effort behind the scenes. Your hard work is ensuring the smooth and seamless event did not go unnoticed. So, and your commitment to providing an enriching experience for all the participants in this, sincerely appreciate to all our attendees. Thank you for your active participants and thought-provoking questions. Your enthusiasm and curiosity are what make such a discussions on valuable. It is our enlightenment that transform a presentation into the meaningful dialogues and enhance our collective learning experience. So finally, let us remember that exploring of satellite orbits does not just about the understanding the mechanics of space travel, but also about the envisioning the future's possibility they hold for science, communications, and explorations. As we live here today, we may carry forward the insight gained and continue to foster our curiosity and passions for the science. Thank you once again. I hope you all have a great day ahead. So thank you very much, Vishal sir, for your commitment is very good in a very short Thank you, notice. sir. Thank you very much, sir. Okay, thank you, SP, Department of Physics, Saurashtra University, and Nikesh Shah sir, especially, and his team. Okay, thank you much. Thank you, sir. Thank you all. Thank you. Thank you.